Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to discuss the syllabus of Communicative English, code number 101 for class 10th for the session 2024-25. Let us first understand the section-wise weightage. So the paper is going to be divided into 4 sections, that is A, B, C, D. A is going to deal with reading skills and it will have a weightage of 22%. The second section is writing skills with a weightage again of 22%. The third section is of grammar. It will have a weightage of 10%, while the literature textbook has a weightage of 26%. And the total will amount to 80 marks. Now the first section, that is the reading skills, requires around 50 periods for practice. It is going to be divided into 2 questions. First question will be of 12 marks. The second will be of 10 marks. The combined maximum word limit of both the passages will be 750 words, and they can have continuous and non-continuous text which will be inspired from the themes in the prescribed books. जो आपकी 3 कोर्स बुक्स हैं, दैट इज़ द मेन कोर्स बुक, आपकी लिटरेचर रीडर और आपकी वर्क बुक. तो ये जो आपकी कोर्स बुक्स हैं इनके थीम्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा. ऑन दी अदर हैंड जो आपके नॉन कंटिन्यूस टेक्स्ट हैं उसके लिए आपकी मेन कोर्स बुक में आपको फर्स्ट यूनिट में दिया गया है, लिस्टें दी गई हैं, टेबल्स हैं, क्यूज हैं, मैसेज हैं, टेलीफोन कॉन्वर्जेशन है. तो इस तरह से नॉन कंटिन्यूस टेक्स्ट के लिए आपकी मेन कोर्स बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी. Now for the type of questions, you will have objective type questions which include multiple choice questions, then very short answer type questions जो आपको one word में या one phrase में या maybe even one sentence में देने होंगे. Then they will also include short answer type questions जो 30-40 words के होते हैं. And in these questions you will be asked to interpret. आपको जो भी पैसेज दिया जाएगा उसका थीम क्या है वो इंटरप्रेट करना पड़ेगा. आपको इवेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा. यू विल हैव टू इन्फर, evaluate, and again vocabulary is also going to be tested. The next section is writing skills, which has a weightage of 22 marks. For this, around 50 periods will be used to teach, and इसमें again long and short writing task दोनों होंगे. The first writing task will be an email. This email will be to school authorities. अब ये किसी भी topic पे हो सकता है. It can be for application for leave, change the subject, change of section, bus timings, some kind of school complaint. किसी के ऊपर भी आपको email आ सकता है. The word limit for the same is 50 words and it will have a weightage of 3 marks. The second question will be a factual description passage, जिसमें आपको किसी person या object को describe करना होगा. Word limit will be 100 words and इसका जो marks होंगे that will be 4 marks. The third question will be a formal letter. आपको 2 formal letters दी जाएंगी जिसमें से आपको एक attempt करनी है. Word limit will be 120 words. Again जो theme होगा that will be aligned to the main course book. MCB का मतलब है जो आपकी main course book है. इसका जो marks होंगे that will be 7 marks. And the last question will be article. From 2 articles you will have to attempt 1. इसके लिए आपको verbal cues दिए जाएंगे. Word limit will be 150 words and again it will be aligned to the MCB topics. इसका जो marks होंगे that will be 8 marks. The third section will be of grammar. It is of 10 marks and the suggested time period is 20 periods. उसमें आपको पढ़ाना होगा tenses, models, subject verb concord. Concord means agreement, then reported speech based on 3 kinds of sentences, that is commands and requests, statements and questions. You will have to teach clauses which are again of 3 kinds: noun clauses, adverb clauses and relative clauses, and finally determiners. अब ये grammar section test कैसे किया जाएगा? It will be through 3 questions. First question will be gap filling for 3 marks. Second will be either editing or omission for 4 marks,
and the last will be sentence reordering or sentence transformation of 3 marks. सेंटेंस रीऑर्डरिंग का मतलब होता है कि फ्रेजेस या वर्ड्स जम्बल्ड होंगे और आपको सेंटेंसेस को रीऑर्डर करना होगा. सेकेंड फॉर्मेट सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग का होता है कि प्रोसीजर होता है जो ये लोग जंबल कर देते हैं, तो आपको वो जंबल्ड सेंटेंसेस को अनजंबल करना होता है. एंड नेक्स्ट इज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें जैसे क्लॉजेस के साथ आपको ज्वाइन करने के लिए आ सकता है, आपको प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, आपको नरेशन को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये चीज़ें आ सकती हैं. सो दिस इज हाउ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मे बी आस्क्ड. The last section is from the literature textbook. इसका weightage 26 marks है and allotted time period is 50 periods. So in this part, you will be given 3 extracts out of which you have to attempt any 2. They will be based on both, either from prose or poetry, right? अब इसमें type of questions कैसे होंगे? They will be very short answer questions और आपका जो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन है उसको असेस किया जाएगा. आपका इंटरप्रिटेशन, आपकी इन्फ्रेंस और इवैल्यूएशन को टेस्ट करेंगे. दिस विल हैव अ वेटेज ऑफ 8 marks. दैट इज बोथ द एक्सट्रैक्ट्स विल हैव इक्वल 4 marks ईच. ओके, नेक्स्ट होगा आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 6 दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं. अगेन ये आपका लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ थीम एंड आइडियाज को असेस करेगा, आपके एनालिसिस, आपकी इवैल्यूएशन और आपके एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन को चेक करेगा. जो वर्ड लिमिट इन आंसर्स की होगी दैट विल बी 30 to 40 words. Each question will have a weightage of 2 marks and the total weightage will be 10 marks. लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आप चैप्टर की भी अंडरस्टैंडिंग रखो और ग्लोबल मतलब इसको दुनिया के साथ भी रिलेट कर सको, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ भी रिलेट कर सको. तो अगर आप में ये एबिलिटी है देन यू कैन आंसर, यू कैन अटेम्प्ट this part very easily. The last will be one long answer type question. You will be given 2 questions and you can attempt any one. Uh, in this question, you will be assessed on the values. It is going to be a value based question. इसमें आपकी creativity, आपका evaluation skill, आपका questions based on extrapolation beyond and across the text, इन चीज़ों को assess किया जाएगा. ये जो क्वेश्चन है इट कैन ऑल्सो बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो उस स्टोरी के सिचुएशन या प्लॉट के ऊपर बेस्ड होगा एंड आपको उसके हिसाब से इवैल्यूएट करके आंसर लिखना होगा. द वर्ड लिमिट फॉर द सेम इज 150 वर्ड्स एंड इस एक क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं दैट इज 8 marks. The prescribed books for 10th standard are Interact in English series by CBSE. ये जो बुक्स हैं ये आपके www.cbseacademic.nic.in पे अवेलेबल हैं. They include 3 books. The first is main course book, the revised edition. Second is literature reader, the revised edition. And the third is the workbook, which is a grammar book. Again, you have to take the revised edition. अब ये जो आपने पढ़ाना है इसमें टीचर्स को एडवाइस किया जा रहा है कि जो टीचर टॉक टाइम है दैट शुड बी अ मिनिमम. वी शुड फोकस ऑन स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम. इसके लिए आपको क्लासरूम इंटरेक्शन को एनकरेज करना पड़ेगा बिटवीन द पियर्स, अमंग द पियर्स, एंड देन आफ्टर दैट अमंग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स. अब ये आप करोगे थ्रू एक्टिविटीज सच एज रोल प्ले, ग्रुप वर्क, इंटरव्यूज, सम काइंड ऑफ अ स्किट. इस तरह से आपको ये इंटरेक्शन को एनकरेज करना है. देन आपको क्वेश्चंस तैयार रखने हैं which will introduce discussion among the pupils. उनको encourage करेगा, ये जो questions होंगे ये students को encourage करेंगे to participate, अपने ideas को streamline करना और उन ideas को express भी करना और defend भी करना.
They need to be, firm about their ideas. They need to know how to defend their ideas. Now, this was 80 marks. What about the rest of the 20 marks? That is known as internal assessment. अब इंटरनल असेसमेंट में से 5 मार्क्स होते हैं ALS के लिए. जो 5 मार्क्स जो बाकी के 15 मार्क्स हैं, उसमें से 5 मार्क्स होते हैं आपके पोर्टफोलियो नोटबुक करेक्शन के, और 10 मार्क्स होते हैं आपके जो क्लास असेसमेंट्स हैं थ्रू आउट द ईयर. तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स बनते हैं. We will be talking about ALS. ALS is assessment of listening and speaking skills. ये जो आता है ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के अंडर आता है, और ये 4 स्किल्स, द 4 लैंग्वेज स्किल्स, दैट इज LSRW, उनको इंटीग्रेट करता है. तो ये चारों जो स्किल्स हैं LSRW, ये जब आप ALS एक्टिविटी करोगे तो उसमें इनकॉर्पोरेट होंगी. बट हम जब असेसमेंट कर रहे होंगे तब हमारे को सिर्फ लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस करना है, एम्फसाइज करना है, बिकॉज रीडिंग एंड राइटिंग जो हैं वो ऑलरेडी हमारे रिटन एग्जाम में असेस हो रही हैं. तो हमने ALS में सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को ही एम्फसाइज करना है. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम एक्टिविटीज़ के थ्रू, पूरे साल जो हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उनके थ्रू असेस करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि अ फ्यू इयर्स बैक BBC के लिसनिंग टेस्ट आते थे, हमें वो करवाने होते थे. तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करना है. आप थ्रू आउट द ईयर जो भी लिसनिंग और स्पीकिंग टास्क करवा रहे हो, दैट कैन बी यूज्ड फॉर असेसमेंट. आप नेट से भी उठा सकते हो, आप अपने खुद के भी क्रिएट कर सकते हो, और जो इनकी पैरामीटर्स होंगे, दैट विल बी, फर्स्ट विल बी इंटरैक्टिव कॉम्पिटेंस. इंटरैक्टिव कॉम्पिटेंस का मतलब है कि जब पीयर्स के साथ ये बात करते हैं तो हाउ गुड आर दे एट इनिशिएटिंग अ कॉन्वर्जेशन, how good are they at turn taking, how good are they at sticking to the topic or talking about points relevant to the topic. तो इसके ऊपर आप उनको असेस करोगे. सेकेंड विल बी फ्लुएंसी. फ्लुएंसी इंक्लूड्स कोहेजन, कोहेरेंस एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी. कोहेजन का मतलब होता है कि आइडियाज जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ फ्लो कर रहे हैं. कोहेरेंस होता है कि जो भी आपने बोला है वो मीनिंगफुल है, उसमें एक ऑर्डर है या नहीं है. एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी इज अगेन कि क्या आप इतना फास्ट बोल रहे हो कि किसी को समझ में नहीं आए, क्या आप इतना स्लो बोल रहे हो कि पीपल स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, देयर माइंड वॉन्डर्स. तो आपका जो स्पीड ऑफ डिलीवरी है, दैट टू नीड्स टू बी फ्लुएंट. Third will be obviously pronunciation, and fourth is language. Language includes grammar and vocabulary. अब जब आप लिटरेचर पढ़ा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पहले तो आपको समझना है कि लिटरेचर का एम क्या है. लिटरेचर पढ़ाने से स्टूडेंट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स, टू इंटरप्रेट व्हाट इज नॉट बीइंग सेड, टू एनालाइज the situation, to analyze the meaning behind the words, to infer वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसका inference उनको समझ में आना चाहिए. and they should finally be able to evaluate जो हुआ वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो उसको कैसे चेंज किया जा सकता था. तो ये सारी चीजें, this is the aim of teaching literature. Now, the first thing you're going to focus on are the characters. कैरेक्टर का अपीयरेंस क्या है, उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है. सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब सोसाइटल पोजीशन, वो किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं. what are the what actions do they take, what events do they feature in, वो अपनी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स किस टोन में कर रहे हैं, उनके स्पीच, उनके इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स, ये हर चीज कैरेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए. द सेकेंड इज द प्लॉट, द स्टोरी एंड द थीम विच emerges थ्रू द मेन इवेंट्स. स्टोरी का प्लॉट क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, और वो किस थीम के ऊपर फोकस्ड है. अब ये जब आप करोगे तो आपको प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स भी पता होने चाहिए. उन इवेंट्स को जो चीज़ें लिंक कर रही हैं
वो लिंक्स भी पता होना चाहिए. द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इज ऑल्सो वेरी important, and how these events are going to denote the theme. So when you're paying attention to the plot, story and theme, these are the key features. The third is the setting of the story. वो किस टाइम या प्लेस में सेट है, उस टाइम और प्लेस का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है. तो ये चीज़ें सेटिंग बनाते हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए. और उस टाइम पीरियड में लोगों का बिलीफ क्या था, उनका एटीट्यूड क्या था, राइट. जैसे विक्टोरियन एरा में दे बिलीव्ड इन चैस्टिटी ऑफ द ऑफ द पर्सन्स कैरेक्टर सोल. वो विक्टोरियन एरा की अलग थी. अगर हम मॉडर्न एरा की बिलीफ एंड एटीट्यूड के बारे में बात करें तो वो डिफरेंट है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें तो वो एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है. जब आप टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना पढ़ाओगे तो वो एक पीरियड है ड्यूरिंग द वॉर, तो उस टाइम पे लोगों का बिलीफ और एटीट्यूड क्या था, तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है. देन द लास्ट इज फॉर्म. फॉर्म इंक्लूड्स द लिटरेरी डिवाइसेस सच एज राइम, रिदम, सिमिली, मेटाफर, पन, रेपिटेशन. अब ये जो 6 हैं ये सीबीएसई बोर्ड ने लिख के भेजे हैं, बट आपको बाकी के लिटरेरी डिवाइसेस पर भी फोकस करना है. You need to prepare the child for future life. So with this we come to the end of the video. I hope that it proved informative for you. At the end, thank you so much for watching.